Hello everyone, welcome to my channel. My name is Rumpi Samria and dear friends, today we will be doing the question answers of poem Human Family. So without any delay, let us begin. So here, our first question says that the poem is about, so they have given us some options, different people, friends and family, humanity or none of these. So of course the answer is humanity. ये poem humanity के बारे में है. Second question says the poet knows around. So the options are 10,000 women, 11,000 women, 12,000 women or 13,000 women. So यहाँ पे जो poet है वो करीब 10,000 women को जानती है. So that is the answer. Next question says what are the obvious differences between people according to the poet? Highlight three differences. So poet के according जो people हैं उनके बीच में obvious differences कौन से हैं कि वो एक दूसरे से अलग हैं. आपको three differences बताने हैं. So the answer is some people are serious, some thrive on comedy, some live life at its fullest, some have different skin tone, language, etc. So बहुत सारे differences हैं जिसमें पहला है कि कुछ लोग serious होते हैं, कुछ लोगों को comedy पसंद होती है, कुछ लोग life को fully जीते हैं और कुछ लोगों की skin tone बाकियों से different होती है, languages different होते हैं. So these are the obvious differences between people. Okay, let's see next question. Find the following in the poem. आपको ये poem में से ढूंढना है. Words that rhyme with reality and white. So the answer is for reality we have profundity and for white we have delight. Okay, these are the rhyming words who sounds same. Next is words indicating the variety of skin tones. वो वाले words बताओ जिनसे हमें skin tones की varieties के बारे में पता चलता है. So in the poem the words that shows us the variety of skin tones, those are brown, pink, beige, purple, tan, blue and white. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. आपको डिफरेंट कंट्रीज के नेम बताने हैं जो कि पोम में मेंशन हुए हैं. सो द आंसर इज चाइना, इंग्लैंड, स्पेन, फिनलैंड एंड गिनी. ओके. Question number 5 says the poet says I note the obvious differences between each sort and type. Do you think all differences are obvious? If not, give two examples to explain. जब पोइट कहती है कि वो सारे ऑब्वियस डिफरेंसेस को नोट करती है हर टाइप के हर सॉर्ट के, तो क्या आपको लगता है कि सारे डिफरेंसेस ऑब्वियस हैं कि हम वो हर किसी को पहचान में आ जाते हैं? और अगर नहीं तो आप टू एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन करें. सो द आंसर सेज according to me the differences noticed are obvious because every person has some individual differences based on nature, temperament, etc. However, one thing common to all is the feeling of humanity. So, मेरे according ये जो differences हैं जो notice की गई हैं ये obvious हैं because every person has some individual differences. हर इंसान डिफरेंट होता है, राइट? और उनका नेचर डिफरेंट होता है, उनका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है. हाउएवर वन थिंग कॉमन टू ऑल इज़ द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. हम सब में जो कॉमन चीज़ है वो है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए जो फीलिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिफ्रेन इज द लाइन और लाइन्स दैट आर रिपीटेड इन अ पोम. रिफ्रेन जो एक लाइन है जो कि पोम में रिपीट की गई है. फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन इन द पोम. तो आपको इसका एक एग्जाम्पल ढूंढना है पोम में से. एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन आर वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड्स देन वी आर अनअलाइक. सो दिस इज द एग्जाम्पल हेयर क्योंकि ये वाली लाइन काफ़ी बार यूज की गई है पोम में. नेक्स्ट इज वाई डज द पोइट यूज रिफ्रेन इन द पोम. तो पोइट इस रिफ्रेन को यूज़ क्यों करती है? रिफ्रेन मीन्स कि लाइन को बार बार रिपीट करना. सो द पोइट यूजेज रिफ्रेन टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट वी हैव मोर सिमिलैरिटीज देन डिससिमिलैरिटीज. पोइट ये रिफ्रेन इसलिए यूज़ कर रही है जस्ट टू एम्फेसाइज, इस फैक्ट को वो एम्फेसाइज करना चाहती है, इसको जोर देना चाहती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं और हमारी जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो कम हैं. ओके. Next question is figurative language uses figures of speech, a way of saying something other than the literal meaning of the words. For example, the fourth verse of the poem, I have sailed upon the seven seas, not yet one common man. Find one more example of figurative speech from the poem. जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है वो यूज़ करती है फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे इसका मतलब है कि लिटरली हम उसका मतलब ना लेकर उसका मतलब कोई और होता है.
जैसे कि फोर्थ वर्स में इस पोम में बोला गया है, आई हैव सेल्ड अपॉन द सेवन सीज नॉट येट वन कॉमन मैन। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में सेवन सीज में गई है, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया के कोने कोने में गई है, पर उसे कोई भी ऐसा मैन नहीं मिला जो कि कॉमन हो। सब में डिसिमिलैरिटीज तो होती हैं। आपको फिगर ऑफ स्पीच इस पोम में से ढूंढना है। सो द आंसर इज आई नो 10,000 women। सो लिटरली यहाँ पे वो सच में किसी 10,000 women को नहीं जानती जिनका नाम जेन या मैरी जेन हो। इसका मतलब ये है कि हाँ, वो बहुत सारे ऐसे विमेन को जानती है जिनका नाम जेन या मैरी जेन है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर ओन कंट्री। आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं और आप अपनी कंट्री का रेफरेंस देते हुए इसको एक्सप्लेन करें। So here, unity in diversity means that in spite of the differences in appearance, language, custom, or tradition, we stand united as one. Unity in diversity मतलब अनेकता में एकता। इसका मतलब ये होता है कि हम चाहे देखने में अलग हों, हमारी लैंग्वेज अलग हो, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस अलग हों, पर हम सब एक साथ खड़े हैं। In India, we can see diversity in terms of culture, caste, creed, language, etc. But at the same time, we experience unity among the people as they stand together to save their motherland from outsiders. India में बहुत सारे कल्चर हैं, यहाँ अलग अलग कास्ट हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, बट सेम टाइम अगर कोई हमारी मदरलैंड को, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई इंसान बाहर से आके, तो हम सब एक साथ स्टैंड करते हैं, राइट? The citizens have feelings of brotherhood, love, and affection for each other that clearly reflect in times of adversities, such as a natural disaster or a calamity. हमारे यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उन सब में एक ब्रदरहुड की भावना है, हम सब में प्यार है, अफेक्शन है, जो कि क्लियरली हम लोग उस टाइम देख सकते हैं जब टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, जैसे कि कोई फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, तो बिना किसी कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज को देखते हुए हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो या वी कैन से दैट इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Next question says, why does the poet mention different countries in her poem? What does she want to convey? जो पोइट है वो इतने सारी कंट्रीज का नाम क्यों ले रही है अपनी पोम में, वो इससे क्या बताना चाहती है? सो द आंसर इज the poet mentions about different countries to convey that even though we live at far off places, we are one and together in all ups and downs of life throughout the world. पोइट ये मेंशन कर रही है इतने सारे कंट्रीज़ का नाम लेके कि चाहे हम कितनी भी दूर दूर जगह पे रहते हों, पर हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक साथ हैं। ज़िंदगी के जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस पूरी दुनिया में, हम सब उसके लिए एक जैसे ही होते हैं, राइट? And here, last question says, identify the lines that talk about emotions. What do these lines tell us about people? आपको वो lines identify करनी है जो हमें emotions के बारे में बताते हैं। और ये जो lines है ये हमें लोगों के बारे में क्या बताते हैं? So the answer is, some of us are serious, some thrive on comedy. तो यहाँ पे ये जो सीरियस वर्ड है और कुछ लोग जो कॉमेडी पसंद करते हैं, दैट टेल्स कि हम लोग इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। These lines basically indicate that all human experience different emotions. हम जितने भी ह्यूमन हैं ये different emotions experience करते हैं। कुछ सीरियस होते हैं, कुछ ज़्यादा फनी होते हैं, उनको कॉमेडी पसंद होती है। Emotions are common to all. सब में emotions होती हैं। The only difference is that some prefer one emotion over the other. बस difference सिर्फ इतना है कि कईयों के इमोशंस दूसरे होते हैं, कईयों को लाइक सीरियस होना पसंद होता है और कईयों को फनी होना पसंद होता है। सो दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। ऑलराइट, so guys, these were the question answers of our poem Human Family. I hope that you understood, and if you did, please hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can be updated about the new videos that I upload. Okay, and please comment below that what you liked and in future which videos you would like to see. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.